اشارہ بانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے سے پھر سے ہم شروع کریں گے۔ اشارہ بانی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق کام، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع ساتے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 356 356۔ Holy
اور گزرے سارے وقت کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو سنبھالا۔ عید تثلیث کے بعد آج پہلا اتوار ہے، سو ہم ہر دن کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر گھڑی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنا۔ شکر گزاری کیجیے چند الفاظ، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ سلینا آپ دعا کریں۔ تو جو ہمارا باپ، ہمارا رب، ہمارا منجی ہے، تو جو ہمارا بچانے چھڑانے والا باپ ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس موقع، اس گھڑی کے لیے، اس رفاقت کے لیے، تیرے اس اجتماع کے لیے، تیری اس کلیسیا کے لیے۔ خاص طور پر خدا تیرے شکر گزار ہے تیرے پاک روح کے لیے جو ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خدا تیری دی ہوئی تمام تر برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے جو بیان سے باہر ہے، جن کا ہم شکر ادا کرنے لگے تو دن تھوڑا ہے۔ ہم واپس ہماری شکر گزاری کے ساتھ اپنے آپ کو روح بدن جہانوں سمیت تیری تابعداری میں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں آج خدا آج تو اپنے بندہ کو استعمال کر، آج تو ہم سب کو خداوند کو خوراک دینا جو ہماری روحوں کو تازگی بخشے اور تیری مرضی کو پورا کرنے کے لائق کرے۔ آج میٹنگ کی شروع سے لے کر آخر تک تو اے خداوند اپنے لوگوں کی بڑی مدد کرنا، سہایتا کرنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے زندہ جلالِ بابرکت نام سے، آمین۔ تھینک یو بیٹا، اتنی اچھی خوبصورت دعا کرتی ہیں لیکن آپ لوگ اٹھتے نہیں جب تک میں نام نہ لوں۔ زبور نمبر 122 نکالیں۔ دعا منگوئے مل کے سب، بولے بولے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی اور کس کی، اس لیے مجھے اور آپ کو دعا کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ زبور جو ہم گاتے ہیں کھڑے ہو کے گائیں گے۔
कुद्दूस खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, आसमान तेरा है, ज़मीन तेरी है, हर एक चीज़ तेरे हाथ में बनाई है। तो आसमान को साहिबान की तरह तानता और नूर को पोशाक की तरह पहनता है। खुदा तालिब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपनी सूरत पर अपनी शरीक की मानिंद बनाया, ताकि हम हर घड़ी हर लम्हा तेरी शुक्रगुजारी करें और रोज़ ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर करें। तेरा शुक्र करते हैं कि मुबारक बेटे अपने सच्ची खुदा यीशु के लिए, इसके वसीले से तूने हमें अपनी मिरास के वारिस ठहराया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू हमेशा अपना कान हमारी तरफ झुकाए रहता है। हम किस भी हाल में हों, हम जैसे भी तेरी प्रस्तुति तेरी ताज़ीम करें, तू हमारे दिलों को देखता और हमें अपने हुजूर कबूल करता है। आज इस सारी हमको सुना के लिए, तेरी जमात के लिए मिलकर तेरे हुजूर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। अभिमान रखते हैं कि तूने हमारी इस कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल किया है। इन सभी गीतों के लिए, इन सभी ज़बूरों के लिए जो तूने अपने खादिमों के वसीले से हमारी ज़ुबान में हमें मुहैया किए हैं, सभी म्यूजिशियंस के लिए जो हम इस्लाम को खूबसूरत बनाने और जो मेरे करने में हमारी रहनुमाई करते हैं, तेरे शुक्रगुज़ार हैं। जितनी दरखास्तें मेरे खादिम में तेरे हुजूर में रखी हैं, मैं यीशु के नाम में तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के वसीले से तो उन सभी दरखास्तों को अपने हुजूर को कबूल फरमा, क्योंकि तूने इन सभी नामों को सुना है, तो भी इन सभी जिंदगियों खानदानों के हालात को जानता है। सो खुदा देखे कि ईमान के मुआफ़िक तू खानदानों को जवाब दे और जिंदगियों में अपने नाम के जलाल को ज़ाहिर कर। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हो, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं, नोट कीजिए। वालिदैन अपने बच्चों को संडे स्कूल के लिए सलातीन की पहली किताब, सलातीन 19वां बाब पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक, पहली 4 आयत हैं। सलातीन की पहली किताब 19वां बाब। आप में से अगर कोई तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखाए, ठीक है। अभी पढ़ ले बेटा इसको, ठीक है, 2 दफ़ा पढ़ ले ताकि कोई लफ्ज़ है मुश्किल तो बता दे। सलातीन की पहली किताब 19वां बाब पहली आयत से 4थी आयत। आज का दूसरा विरद गलतियों के नाम, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है, 3रा बाब 22वीं आयत से 29वीं आयत, सफ़ा नंबर 181 181। गलतियों 3रा बाब 22वीं आयत से 29वीं आयत। को पढ़ना चाहता है? फिर हम एक गीत गाएंगे। ये किसी ने हाथ उठाया? नहीं पढ़ना चाहते? चले आप पढ़ ले, ज़रा गौर से पढ़ लेना अभी तसल्ली से, ऐनक लगा के आपा जी पढ़ ले ताकि गलत लफ्ज़ ना वहाँ बोला जाए, ठीक है। तसल्ली से 2 दफ़ा पढ़ लें। गलतियों 3रा बाब 22वीं आयत से 29वीं आयत। फिर हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 367, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू।
फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। पादरी नेल्सन की ड्यूटी नाहला का एक गांव है रायवन के पास, वहाँ पे लगी है ताकि वो वहाँ का भी तजर्बा करें, सीखें। और हमारे पास पादरी कलीम गुलजार कुछ देर के लिए आए हैं आर्जी तौर पे। वो यहाँ से कुछ तजर्बा हासिल करेंगे, सीखेंगे। इसलिए ये तीसरा हवाला मैं उनको देता हूँ। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब 26वीं आयत से 33वीं आयत, सफ़ा नंबर 61 मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब, 8वां बाब है, सॉरी 8वां बाब 26वीं आयत से 33वीं आयत। मोज़ेज़ और उबैद, आप पादी साहब को बता दें कि आपने आगे जाना है और वो कहाँ पे खड़े होंगे, और फिर वो बाइबल का मुताला करेंगे। ठीक है, हमारे लिए बाइबल पढ़ेंगे। इंजील मुक़द्दस की तिलावत पादी कलीम एक जाएगा, वो क्रॉस लाएगा और आप वहाँ ईद तशरीस के बाद पहला इतवार है। कल का जो गुज़रा दिन था 21 जून, साल में सबसे बड़ा दिन होता है। कितने घंटे का होता है? 13 घंटे का। हम उस दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं कल गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की मीटिंग में था, जहाँ से पादरी लोग बन के आते हैं। सेमिनरी हमारी बहुत पुरानी सेमिनरी है, 150 साल से ज़्यादा वहाँ खिदमत है। तो कल हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपसे भी दरख्वास्त है कि सेमिनरी के लिए दुआ करें, जहाँ से खुदा के खादम तैयार हो के आते हैं। और ये सेमिनरी पाकिस्तान बनने से कहीं पहले भी इस सेमिनरी का बड़ा नाम था। हम उन खादमों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन खादमों ने वहाँ पे खिदमत की और वहाँ से तालीम और इल्म इलाही की तालीम हासिल करके दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में खिदमत गुजारी के काम को कर रहे हैं। कल का दिन योगा का दिन था। कभी आप में से किसी ने योगा किया, वर्जिश किया? वाह, किया करें। अल सुबह उठा करें, वॉक किया करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे, रवैया नॉर्मल रहे, सुबह उठ के वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, बीमारियों से बचे रहेंगे। कल का गुजरा दिन आलमी यौम मौसीकी का दिन था। हम मौसीकी के लिए, इन साज़ों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 23 तारीख को बेवाओं का आलमी दिन है। 26 तारीख को मनशियात के गलत इस्तेमाल और फ़रोग के ख़ात्मे का आलमी दिन है। आपको पता है कि मनशियात के ज़रिए कितने लोग रोज़ मरते हैं, कितने घर बर्बाद होते हैं। इसलिए बच्चों की तरफ ख़ास तवज्जो दें कि वो क्या करते हैं, कहीं जाके बैठ के किस तरह की कंपनी में बैठते हैं, कैसे लोगों में बैठते हैं, कैसे दोस्त हैं उनके। तो जब ये इल्लत, ये आदत, ये गलत आदत में ना वो खुद बर्बाद होते हैं, घर वालों को भी कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हमारे बच्चे मनशियात के आदी ना हों। अक़वाम मुत्तहिदा
تشدد کے شکار افراد کے ساتھ یوم یکجہتی کا دن ہے، تاکہ اس معاشرے میں جو تشدد ہے وہ ختم ہو۔ تشدد صرف مار کے نہیں کیا جاتا، میں اور آپ کبھی کبھار بات ایسی کر دیتے ہیں وہ بھی تشدد میں آتی ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ 27 تاریخ کو آنے والے دنوں میں جو خدا کے خادم ہیں، کاہن ہیں، ان کی پاکیزگی کے لیے خدا سے دعا کرنے کا دن ہے۔ ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں، ہمیں ضرورت ہے دعاؤں کی۔ ہم انسان ہیں، آزمائشیں بھی ہم پہ بڑی آتی ہیں، مشکلات بھی ہم پہ آتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جو خدا نے آج کل کے جو پاسٹر ہیں نا وہ تو بڑی جلدی بن جاتے ہیں نا، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے رویے بدلنے پڑتے ہیں، حلیمی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جو خادم اس خدمت میں بھی مغرور ہے، جو بھی خادم، میں بھی ہوں، اس خدمت میں اس کی اس گردن میں سریا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس خدمت میں حلیمی فروتنی ہے۔ یسوع مسیح تشدد بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم برداشت کرتے ہیں، نہ کریں گے تو تصادم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تصادم ہوتا کیا ہے؟ گھر میں بھی تصادم ہوتا ہے نا، اگر میاں بیوی کے درمیان چپ کر جائے، دوسرا بولتا رہے نا، نہیں لڑائی ہوگی، تصادم نہیں ہوگا۔ دونوں بولیں گے تو پھر تصادم تو ہوگا، ٹکراؤ تو ہوگا، چیزیں تو ٹوٹیں گی، مان ٹوٹے گا۔ اس لیے تکبر ختم ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی سے۔ اس لیے خدا کے خادموں کے لیے دعا کا عالمی دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ شاباش، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مہنگائی پھر ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے نا، لیکن میں ایک آپ کو سے بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود مسکرایا کریں، ہنسا کریں، ہنسایا کریں، کیونکہ ابھی مسکرانے پہ ٹیکس نہیں لگا، باقی سارے چیزوں پہ لگ جائے ٹیکس، خیر ہے۔ خوش رہا کریں جیسے بھی حالات ہیں۔ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا نا کہ بندہ آ کے بیٹھتا تھا، کہتا جی بڑے ہی برے حالات نے، کہتا تو خراب کی طرح، کہتا نہیں، کہتا تو ٹھیک کر لے گا، کہتا نہیں، کہتا چھڑ پہ بہ چائے پینے ہیں، حالات خراب ہو گئے، ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ یہ خدا کے ہاتھ میں۔ خوش رہا کریں، خوشی سے گایا کریں۔ کبھی کبھار اتنے خوشی کے گیت گا رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے منہ لٹکے ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر کیا کریں، خوش ہو کے خدا کی تعریف کیا کریں۔ سیکٹری صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، چونکہ پادری کلیم اور ان کی مسز ہمارے ساتھ ہیں آج پہلے دن۔ یہ میرے دونوں چھوٹے جوان نیچے جائیں، پھولوں کے بکے ان دونوں میاں بیوی کو پیش کریں، انہیں ویلکم کریں۔
गुजारेंगे ताकि सेंट जॉन चर्च में रहकर कलीसियाई खिदमत के बारे में जान सकें और आने वाले वक्त में जहाँ भी खुदा इन्हें खिदमत के लिए लेके जाए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। इस बाब और उसकी पहली 4 आयात में यूं मरकूम है, और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजबल को बुलाया। सो एजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल उस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है और अपने खादिम को वहीं भेजा, और ख़ुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। आमीन। में हमारी निगहबानी होती थी और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। यसु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, किथे गया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई ग़ुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यसू में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। खुदावंद के कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। आमीन।
کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 8واں باب 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، پھر گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اس سے ملا جس میں بدروہیں تھیں، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں۔ اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم نہ دیں۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ انہوں نے اس کی محنت کی کہ ہمیں اس کے اندر جانے دیں۔ اس نے انہیں جانے دیا، اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئی، اور غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروہیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا۔ اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگ اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدروہیں نکلی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے۔ مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں کو بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ میں ایمان کرتا ہوں ایک خدا قادر باپ جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی۔ وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔
हम दुआ मांगें और अपने आप को खुदा उनका कलाम सुनने के लिए तैयार करें। खुदा हमसे इल्तिजा करें। मिसेस मुमताज़ गिल, आप दुआ में रहनुमाई करें, चंद अल्फाज में मेरे लिए भी बैठ जाए। खुदा के खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आप सबको खुदा उनके घर में वेलकम करते हैं। आपके ख़ानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उन सारे वसाइल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा ने हम सबको अता किए हैं, जिनके वसीले से मैं और आप आज फिर खुदा उनके घर में बैठे हैं, खुशी के साथ बैठे हैं। उसकी ताज़ीम हमने की है, उसकी सताइश की है कोयर के साथ मिलकर। और अब ये मौका है कि हम खुदा उनके कलाम को सुनें पूरी तवज्जो के साथ, चूँकि जो मौजूदा हालात हैं दुनिया में, जो अफरा तफरी है, जो बदअमनी है, जो कौमें कौमों पर चढ़ाई कर रही हैं, सल्तनतें सल्तनत पर चढ़ाई कर रही हैं, जंग है, इन सारी बातों को जब मैं और आप देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस सारी बातें जो मैं और आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, वो पेशगोइयाँ जो हो चुकी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। पुराना अहदनामा, नहदनामा, ये खुदा के दो होंठ हैं, लिप्स हैं, जो मेरे और आपके लिप्स जिनसे मैं और आप बात करते हैं। तो खुदा हमारे साथ पुराने और नए अहदनामे के वसीले से बात करता है। सो आज का जो हवाला है सलातीन की किताब, बहुत मशहूर हवाला है, कई दफ़ा आपने पढ़ा, कई दफ़ा आपने सुना होगा। लेकिन आज इस वक्त मौजूदा हालात में जब लोग मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, तो फिर मेरे लिए और आपके लिए एक ही उम्मीद होती है, मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। तो एक बहुत बड़ा खादिम जो हवाला पड़ा है, निकाले ज़रा। पहला सलातीन 19वां बाब। एलिया का नाम सुना है? ऐसा खादिम, बड़ा दिलेर खादिम था, लेकिन डर गया। हम भी डर जाते कई दफ़ा, लेकिन खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? यहाँ पे एक मुकाबला था। 19वें बाब की पहली आयत देख रहा हूँ। अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजिबल को बताया। ये कौन थी? ये अखीब की बीवी थी, उसने उसको बताया। सो एजिबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया, एक शख्स को भेज दिया और कहला भेजा, ये धमकी देखें कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह न बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज़्यादा करें जिनको वो मानते थे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है आया। उसने माइग्रेट कर लिया, वहाँ से चल पड़ा, हिजरत कर ली उसने डर के सबब से। मैं भी अक्सर कहता हूँ कि अगर तंगी है, अगर मुश्किल है, परेशानी है, तो फिर जगह बदल के देखो। हिजरत में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी नहीं है।
تنگی ہے تو شہر کو دیکھو، اس جگہ کو دیکھو، اس علاقے کو دیکھو. تنگی ہے تو جگہ بدل کے دیکھو. ہجرت میں ہر حال میں برکت ہوتی ہے. ہجرت کر جائیں، جگہ چھوڑ دیں، آگے جائیں، خدا آپ کو برکت دے گا. ایلیا گیا، وہاں سے چلا، اپنے خادم کو وہیں پہ چھوڑا. خود ایک دن کی منزل دشت پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شعر ہے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں مشکل ہوتی ہے، جہاں پریشانی ہوتی ہے، ہم وہاں بھی گئے. جانا پڑتا ہے. خادم کو دلیر بھی ہونا چاہیے. بزدل لیڈر کے پیچھے لوگ نہیں جاتے. دلیر بھی ہونا چاہیے، حلیم بھی ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے. وہاں نکل گیا، جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی. کیا مانگی؟ اتنا بڑا شخص، خدا پر ایمان رکھنے والا. ایلیا تھا کون؟ اب بولو کیا ہو گیا؟ بولے اتنا بڑا نبی، لوگوں کو دلیری دینے والا. ڈر گیا، چاہ کے پیڑ کے نیچے لیٹا، سو گیا، پریشانی میں سو گیا. دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ کھا. دشت میں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیز میسر ہی نہیں تھی، تو خدا کے فرشتے نے کہا اٹھ کھا. اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی کہاں سے آ گئی؟ خدا اپنے محبوب کو، اپنے خادم کو نیند میں ہی. آپ کا ایمان ہے؟ میرا یہ ایمان ہے. میرے ساتھ یہ تجربات ہوئے. خدا اپنے خادم کو، اپنے طالب کو، اپنے محبوب کو جو اس پر توکل کرتا ہے اس کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. اور روٹی بھی وہ جو مجھے بڑی پسند ہے، جو پھلی ہوتی ہے نا روٹی، وہ یہاں پہ لکھا ہے، دیکھ لیں. ایسی روٹی پکی ہوئی تھی انگاروں پہ، اور ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی جلی تھی. جب مائیں روٹی بناتی ہیں نا تو روٹی جیسے ایسے پھول جاتے کو اپنا اس کا ہسبینڈ ہو یا اس کا بیٹا ہو بیٹی ہو کہ اس کو بھوک لگی ہے اس لیے ایسے ہے نا، تو اس کو بھوک لگی تھی، وہ پیسہ تھا، بھوکا تھا، اس لیے خدا ماں کی طرح، باپ کی طرح مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، میری اور آپ کی فکر کرتا ہے. وہی چیزیں مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے جو میرے لیے بہترین ہوں، جو میری پسند کی ہوں. دونوں چیزیں میسر ہوئیں. کھا پی کر پھر لیٹ گیا، ریلیکس ہو گیا، آسودہ ہو گیا. خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا کر کہا اٹھ کھا، یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا سفر ہے بھائی. چاروں خادم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خدمت آسان نہیں ہے بھائی. دیکھ لیں ابھی سفر لمبا ہے، مشکلات ہیں. اب پادری سشیل سے پوچھیں کتنی پردیس میں مشکلات ہوتی ہیں. کھانا بھی ٹائم پہ نہیں ملتا، کئی دفعہ خود بنانا ہوتا ہے نا، فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ خدمت میں اتار چڑھاؤ، مشکلات. جب پادری سشیل یہاں سے گیا تھا ایسا نہیں تھا، جب واپس آیا فرق تھا. آج چند دنوں میں اپنے ماں کے ہاتھ کی کھا کے پھر فرق آ گیا. آیا نظر آ رہا نا آپ کو؟ یہ خدا کا خادم مشکلات میں سے گزر رہا تھا. ہم مشکلات میں سے گزر کے یہاں تک آتے ہیں. اس نے کہا تیرا سفر بہت بڑا ہے، اٹھ کھا پی. اس نے کھانے کی قوت سے کھایا پیا. 40 دن 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا. چل کے گیا، طاقت آ گئی. وہیں غار میں جا کر ٹک گیا. اور دیکھو خدا کا یہ کلام
उस पर नाजिल हुआ कि एलिया तू यहाँ क्या करता है और ये तेरी खिदमत नहीं है, उठ तुझे जो कुछ करना है भाई वो कर। उसने कहा खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो मेरी जान के लिए वो भी मेरी जान के दर पे हैं, मुझे मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं ही बचा हूँ। उसको ये नहीं पता कि खुदा बकिया रखता है। हमारे इस ग्राउंड में एक दरख्त था, टाली, वो गिरने वाली थी, कटवा दी हमने। 7-8 महीने की बात है। अब देखिए हमने कहा ख़त्म होगी, लेकिन वहाँ पे बकिया था। अब वहाँ पे एक और उसी तरह का दरख्त टाली बन गई। अपने आप खुद ब खुद खुदा किसी को नहीं छोड़ता, खुदा मेरी और आपकी फ़िक्र करता है, वो बकिया छोड़ देता है। हम समझते हैं कि शायद ख़त्म हो गई, बात नहीं, कहानी ख़त्म नहीं हो गई। और खुदा के बंदा ने कहा कि मैं अकेला बचा। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, जहाँ से लोग तुझे देखें। खुदावंद गुजरा, एक बड़ी तूंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला, चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में से नहीं था। आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में भी नहीं था, और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था, और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज़ आई। उसने सुनकर एलिया ने अपना मुंह उस चादर से लपेट लिया, बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देखो उसे ये आवाज़ आई कि आए एलिया तू यहाँ क्या करता है, जा मेरी गवाही दे, निजात का पैगाम दे, खुशखबरी का पैगाम दे, लोगों को बता कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। उसने कहा मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो मेरी जान लेने के दर पे हैं, मुझे भी मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदावंद ने उसे फरमाया तू अपने रास्ता लौट, वापस जा, दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहाँ पहुँचे तो हिजकिय्येल को मसकर के आराम का बादशाह, हिजाइल को मसकर, हिजाइल को मसकर वो बादशाह होगा, और निमसी के बेटे यहू को मसकर के इसराइल का बादशाह हो, और अबील मोहला के अलिशबा बिन साफत को मसकर, अलिशा कि तेरी जगह नबी, तेरी जगह वो नबी होगा, उठ जाके खुद उसको जाके मसा कर। खुदा के कलाम में लिखा ऐसा होगा, जो हिजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे यहू कत्ल कर देगा, जो यहू की तलवार से बचेगा उसे एलिशा कत्ल कर देगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर मुंह जिसने उसे नहीं चूमा, जिन्होंने बुतों की प्रस्तश नहीं की, जिन्होंने गैरों के आगे जो नहीं झुके, मैं उनको बचा छोड़ूंगा, तू फिक्र न कर। लेकिन वही कत्ल होगा जिसने इनकार किया, यहू उसको कत्ल कर देगा। एलिया ने कहा था कि उसे उसके जो उसकी लाश होगी उसे कुत्ते खाएंगे। सो यहू ने फिर उसे बड़ी बेरहमी से खिड़की से नीचे फेंक दिया, पड़ा रहा, और कुत्तों ने उसकी लाश खाई। जो खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, खुदा उन्हें सज़ा देता है। जो खुदा के चलते काम को रोकने की कोशिश करते हैं, जो मुखालफत करते हैं, जो खुदा के काम को रोकते हैं। इसलिए आज के पैगाम में जो तसल्ली की बात है, बाल की प्रस्तश जिस शख्स ने राइज की, बुतों की प्रस्तश की का रवाज लाया, खुदा ने उसको बुरे तरीके से मारा, खिड़की से फेंका और नीचे गिर गया, कुत्तों ने उसकी लाश को काटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दौर में आपके सामने
बहुत सारी बिदतें तालीम आएंगी, खुदा का इनकार कभी ना कीजिए। कभी कभार मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चुभने वाली चीज़ दर्द नहीं देती। घर में चुभने वाली सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए पता कौन सी चीज़ है? बाप, है ना? क्योंकि बाप ने समझाना है और कहना है ये काम ना कर। उसके बाद माँ ने टोकना है। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करती हैं। ये जो घड़ी की सुइयाँ ना, इसमें सुइयाँ है ना, फूल नहीं है। घड़ी में भी सुइयाँ जो मुझे और आपको जीने का ढंग सिखाती हैं। हर चुभने वाली चीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो दर्द है। आगे बढ़ने के लिए हमें वालिदैन, बड़े बुज़ुर्ग पीछे से धक्का मारते हैं, चल भाई आगे बढ़। शुक्र किया करे वालिदैन के लिए, उनकी इज़्ज़त और एहतराम किया करे वालिदैन के लिए। वो बदनसीब शख्स है जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जिसे कोई समझाने वाला नहीं है। आप खुश हुआ करें कि आपको कुछ समझाता है, आप खुश हुआ करें कि आपको कोई रोकता टोकता है। आज की दुनिया में, इस दौर में जो गैर मज़हब में शादियाँ हो रही हैं ना, उसका सबब, उसकी वजह सिर्फ यही है, हम लाड बड़े देखते हैं लेकिन समझाते नहीं हैं। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, लड़कियों से कहना चाहता हूँ, लड़कों से कहना चाहता हूँ, ईमान में मजबूत रहें। जब आप खुदा को भी और वालिदैन को भी धोखा देते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ धोखा ही होता रहता है। गलतियों के ख़त में पौलुस रसूल यही बात कहता है कि भाई ना फिक्र करें, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। पहले हम शरीयत के मुताबिक थे, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ़ है। ईमानदारों के हक़ में पूरा किया गया वो वादा। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, तो ये जो शरीयत है ना, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर देखा कभी किसी ने? जब आपको बुखार होता है तो थर्मामीटर लगाते हैं डॉक्टर, घर में नर्सेज थर्मामीटर लगा देती हैं। वो थर्मामीटर क्या बताता है कि आपको बुखार है, टेम्परेचर है, इलाज नहीं करता। वो थर्मामीटर आपका इलाज तो नहीं करता, सिर्फ बताता है। ये शरीयत मुझे आपको बताती है कि गुनाह है, गलती है, कसूर है, लेकिन इलाज किसने किया? खुदावंद यीशु मसीह ने। वो मेडिसिन बना मेरे लिए और आपके लिए, मर गया, दफन हुआ, ताकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाएँ, आज़ादी पाएँ, रिहाई पाएँ, छुटकारा पाएँ। और गलतियों के ख़त में आखिरी अल्फाज में पढ़ रहा हूँ, बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी। 24वीं आयत पढ़ रहा हूँ, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मतहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लो। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक। भाइयों बहनों, हम सब एक हैं। ये चर्च में बैठे हुए भी एक ही हैं, महल्लेदारी में भी एक ही हैं, घरों ख़ानदानों में भी एक हैं, लेकिन हमारे दरमियान ये नफाक, ये दरारें किसने डाली हैं? इस माहौल ने, या खुदगर्जी ने, या तकब्बर ने, या नफ़रत ने? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें अलहदा कर दिया है? अगर तुम मसीह में हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के वारिस हो। कभी अपने वालिदैन को, नौजवानों, बेटों बेटियों, दगा न देना। मैं अक्सर एक बात बड़ों से कहता होता हूँ, दगा हम किसी से कर नहीं सकते। हमने वफा का बपतिस्मा लिया है। जब आप बपतिस्मे के लिए यहाँ आते हैं हमारे पास, जो अहद यहाँ करते हैं, आपने उन वादों पर कायम रहना है
ताकि आपकी ज़िंदगी से दूसरे लोग बरकत पाएँ। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मुश्किल पैदा करती हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसा मर्द यीशु मसीह के सामने आ गया जिसमें बदरूहें थी, जो हवाला पादी साहब ने पढ़ा, एक आदि नहीं थी। ये कहाँ से आती हैं बदरूहें? मेरे आपके इर्द गिर्द ही रहती हैं, जिन पे आप बहुत तकिया करते हैं, जिनको कहता है बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है, ऐसी गल करता है, असी तो खुश ही बड़े होंगे, हासा निकलता है साडा, ये बड़ी, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो आपको ख़राब कर रही है, ख़राब कर रहा है। ऐसा शख्स, उसने कहा भी तो कौन है? उसने कहा मैं लश्कर हूँ। एक शख्स बदरूहों में कहता मैं लश्कर हूँ, लेकिन तड़प रहा था। मैंने जब ये हवाला पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान था कि ऐसी चीज़ का जिक्र वहाँ पे किया गया है कि उस शख्स ने कहा कि तो मुझे छोड़ दे। उस पास सूअर चर रहे थे, तो उसने कहा तो हमें इजाज़त दे दे कि हम इनमें चले जाएं। क्यों उनमें चले जाएं भाई? इंसान को छोड़ने के लिए। और खुदा के कलाम में लिखा है और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर चली गई और गोल कलाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। कौन डूब मरा? कौन? आहा, मुझे बात याद आ रही थी। अनवर मकसूद का नाम सुना है आपने में से किसी ने? बड़ा स्कॉलर है, बड़ी अच्छी बातें करता है। कहता है जो ममालिक, जिन मुल्कों में लोग सूअर को खा जाते हैं, सूअर खाने वाले ममालिक में खुशहाली है, वहाँ अमन है, वहाँ मोहब्बत है, वो महज़ब माशरा है, इसलिए कि वो अपने सूअर को हाकम बनाने की बजाय उसे खा जाते हैं। कैसी बात है? वो समझ आई है कि नहीं? वो किसी ने समझ आई है क्या? वो जो सूअर है ना, वो उनको अपने सर पे नहीं बैठाते, उसको हाकम नहीं बनाते, उसको अपना लीडर नहीं मानते, उसको अपना उस्ताद नहीं मानते। और हमारा यहाँ ये हाल है, जिसे कुछ नहीं आता, जो अनट्रेंड है, गैर तरबियत याफ्ता है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा लीडर है, और हम उसके पीछे चले जाते हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं। हम खुदा परस्त नहीं फिर बस वक्त रहते, इंसान परस्त बन जाते हैं। तो अनवर मकसूद कहता है वो खा जाते हैं, हाकम नहीं बनाते, लीडर नहीं बनाते, पासवान नहीं बनाते वो उसको, बल्कि उसको खा जाते हैं। इसलिए वहाँ पे अमन है, मोहब्बत है, प्यार है, महज़ब माशरा है। आए मैं और आप अपने इस माशरे को महज़ब बनाने के लिए अपनी आदत, अपनी सोच, अपने रवैये बदलें, पीछे न जाएं किसी के। लीडर वही है, लीडर जो लीड करता है, और जो किसी को यहाँ से उठाकर आगे ले जाता है। लीडरशिप, शिप का मतलब है, कहता है जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो कहते हैं शिपिंग आ रही है ना आपके, है ना, वो घर आपके पहुँच जाती है। तो लीडर का काम है नीचे से उठाकर आगे लेके जाना। हमारे लीडर ऊपर से नीचे ले आते हैं। इसलिए ऐसा लीडर न चुने, ऐसा उस्ताद न चुने जिसकी तालीम ही ठीक ना हो, जिसमें तकब्बर हो, जिसमें गरूरी हो, जो खुदा को शख्सी तौर पे ना जानता हो, प्रचार ज़रूर करता हो। कई लोग अपने अकीदे का बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन उसके ताबे नहीं रहते, लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अकीदे के लिए, लेकिन वो बातें नहीं मानते। मेरे और आपके मसीहा ने क्या कहा? अपने दुश्मन से भी और उसके लिए दुआ करो। आए मैं और आप इस अफरा तफरी के दौर में अपने आप को तब्दील करें, अपने रवैये बदलें, अपनी सोच बदलें, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरें। ना डरें, ना घबराएं, जो बात करनी है वो करें, क्योंकि खुदा अपने महबूब को, अपने खादिम को जो उस पर तवक्कुल रखता है, वो औरत है या मर्द है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, बच्चा है, नौजवान है, जैसा भी है, वो अपने खादिम को, अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। खुदावंद नींद ही में आपको हिकमत, अक्ल, दानिश और फहम अता फरमाए, ताकि इस समाज में रहते हुए दूसरों के लिए आप बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत है। खुदावंद का शुक्र करें। ताली ना बजाएं, कोई बात नहीं ऐसी।
थैंक यू। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है इस कलाम के लिए, फिर हम एक ज़बूर गाएंगे और अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके ज़रूर गुजराने के। जो तेरे खादम ने बयान किया तेरे खुदा के दिल में मुझे तेरे खुदा तूने अपने खादम की वसीला से तेरे खुदा हर एक को ऊपर कर दी। तेरे खुदा तेरा शुक्र करती, तेरे नाम की तारीफ करती। ये छोटी सी मिन्नत को सुना और कबूल कर, तेरे मीठे और मुकद्दस नाम से मांगा होता है, आमीन। अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं।
तो हम सबको भी अपने से कबूल फरमाए, हम देने वालों को बरकत दे। इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खिदमत के काम को करते हैं। चर्च का एक एक शख्स तेरे ही नाम से नाम, एक एक खानदान तेरे नाम से नाम। आज जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनके खानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। हम सबको मौसमी इसरार से बचा कर पूरा इस हदीस की तकदीस का तेरे जवाब इस्तेमाल बाप बेटे और उसके नाम से। जमायत अच्छे सरदार काहिन जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में है, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रूल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस करें, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप कादिर मतलब रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन से इसकी सारी कलीसिया के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। सब बोले वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नाज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। हाज़िर जमायत पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जंग ज़दा लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, अपने खादमों पर रहम कर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। जंग के दौरान जिन लोगों के सीज़न से जुदा हुए उन सब पर रहम कर। इस मुल्क पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीत का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरे का इंतज़ार करते हैं, इसी तेरा इजलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। सब बोले, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सब बोलें। और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं
बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म रहें, उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगें और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। एक दूसरे से कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देंगे कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताजगी पाएँ। जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और उनके पास जाने की बेखून है, तो हम शुक्रगुजारी करें। तारीफ से खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीब बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन ने बतौर में बदन कबूल कर लिया है और हमें उसके हमारे बेशकीमत बदन और उनकी हमारी खुराक से किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा के ज़िंदगी का वादा दिया है। हम बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और आपको अपनी और अपने संग में तेरे नजर गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मामूली बात है। हमें ये बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल के बनाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और मुँह के पीने को सामने महसूस सीखें और इस जहान में इस तरह के धर्म पैदा करें कि हम आखिर में तेरे आसमानी बादशाह में तेरे सब मुकद्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता करता है। आमीन। हम और तौफीक और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बार हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंग ज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमाएं बैठ जाएं।